Good morning, student of class 3. How are you, student? Today date is 2/9/2020. I am teaching you chapter number 13, and the name of your chapter is The Story of a Wheel. Okay, so name of the chapter is The Story of a Wheel. So student, in our previous video, let's do recapitulation what we have done in our previous video. Student, in previous video we discuss about the potter wheels, and after that we discuss the keywords of the book and question things to remember, points we have discussed from the book. Now see student, in today video let's start with the book exercises of the chapter number 13. So all of you open page number 70 and you note down the book exercises in the book, because question answer we will write in the classwork copy. Is it clear? So we have to complete book exercises in the book. So okay, last 3 points I things to remember. First I tell you things to remember, then I tell then we start exercises of the book. A wheel is the most important invention for man. So it is true student that wheel is the most important invention for man because it changed the life of a human being. So due to wheels we can move to any place in our country also, or if we want to go in other country also, how the life become very comfortable. So that is the reason student we say that wheel is a very important invention for the man, because it changed the life of the human beings. Second, before its invention man had to walk from one place to place and carry his own food. So now he is telling this thing we have already discussed in the chapter many times. बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, मतलब पहिए की खोज से पहले का समय, ठीक है, जब पहिया नहीं बना था. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द चैप्टर आल्सो दैट बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द व्हील early human beings move from one place to another in search of food and shelter. How they move? They walk from one place to another and they carry their heavy loads on their back. ठीक है, और कोई सामान अगर उनको कैरी करके जाना होता था वो भी उन्हें अपनी बैक पे अपनी पीठ पे उठा के जाना पड़ता था. ऐसा अर्ली टाइम में हुआ. ठीक है. नाउ what is the third point? A log of wood was the first wheel. Yes, it is true to say that a log, because when the early human being ने ऐसा observe किया the things which are round in shape, they can roll easily on the ground. Is it clear? So the first wheel which the early man made is by cutting the trunk of the tree. ठीक है. So yes, a log of wood was the first wheel. So the first wheel आ सकता है one word में question exam में. The first wheel is made of. So what is the right answer? The first wheel is made up of wood. And from where we get the wood? We get wood from the trees. And from where we get the wood, student? We get the wood from the trees. Is it okay? Now next point is wheels are used in all kind of machines, from the small watch to the biggest machine in the factory. It is very true to say that wheels are used in ऑल काइंड्स ऑफ ए मशीन. एक छोटी सी वॉच भी आप भी ऑब्जर्व करो बेटा, तो उसमें भी आपको स्मॉल स्मॉल व्हील्स मिल जाएंगी.
ठीक है, और बड़ी से बड़ी मशीनों को भी आप ऑब्जर्व करो तो उसमें भी आपको व्हील मिल जाएगी. सो इट इज ट्रू टू से दैट द व्हील इज यूज्ड इन स्मॉल all kinds of machine from the small wash to the biggest machine in the factory. आप सोचोगे कैसे व्हील, आपको व्हील का यही कॉन्सेप्ट है ना कि व्हील क्या मूव करती है. तो रोड पे जब मूव करती है इट कवर द डिस्टेंस. ठीक है, तब वो डिस्टेंस कवर करती है. ठीक है, आपने कई फैक्ट्रीज में या कहीं देखो व्हील चलती रहती है. ठीक है, और उसकी व्हील्स के ऊपर क्या होती है, चेन्स होती हैं. सो विद द हेल्प ऑफ ए व्हील द चेन इज मूविंग. ठीक है, आपने स्विंग मशीन देखी होगी जिसपे आपके मम्मी लोग कपड़ा वपड़ा सिलते हैं या रिपेयर करते हैं. तो उसकी भी क्या है, वो भी क्या है, व्हील है. उसकी शेप भी क्या है, राउंड है. इट आल्सो मूव बट इट इज नॉट कवरिंग द डिस्टेंस, इट इज फिक्स्ड. ठीक है, तो व्हील एक ऐसी चीज है, छोटी से बड़ी जो भी मशीन आप देख लोगे बेटा, सारी चीजों में व्हील यूज होती है. ठीक है, इज इट क्लियर? सो नाउ आफ्टर दैट ये हो गया. नाउ स्टार्ट विद द बुक एक्सरसाइजेस ऑफ द चैप्टर. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट एमसीक्यू क्वेश्चन. पार्ट 1 क्वेश्चन, देयर आर 3 options are given and you have to choose the right answer. See, question number A. Fill in the blanks. Fill in the blanks using correct options. So question number 1. Now see, early man lived in dash. Early man lived in dash. So what are the options? Option number A, huts. Option number B, caves. And option number C, okay. See, now early man. ठीक है, अर्ली मैन लिव्ड इन, जब इंसान भी धरती पे जैसे अदर लिविंग थिंग्स भी धरती पे स्लोली स्लोली सब आई ना, तो सबसे पहले जो ह्यूमन बींग्स आए होंगे अर्थ पे, प्लेनेट पे, इस प्लेनेट पे, तो बोल रहा है क्या वो हट्स में रहते थे. सो स्टूडेंट एट देयर टाइम दे आर लर्निंग बाय डूइंग, दे डोंट हैव नॉलेज हाउ टू मेक द हट्स. पहले उन्हें घर बनाना ही नहीं आता था. हट क्या होता है, हट तो ये क्या है, घर है ना, बम्बू से, स्टिक से, बाय यूजिंग द स्ट्रा, ये सब चीजों से जो आप एक घर बनाते हो उसको हट बोलते हैं ना. सो अर्ली मैन को तो ये सब चीजों की यूज का पता ही नहीं था. तो अर्ली मैन क्या हट्स में रहते थे? नो. सी, लाइफ ऑफ अर्ली मैन इज सेम जस्ट लाइक एनिमल्स. ठीक है, जैसे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स क्या है, दे आर लिविंग इन अ जंगल, फॉरेस्ट में. in the same manner early man is also in living in the forest. So first point, that is not a right answer. If we consider tree, early man lived in a tree, know how they can live in the tree. ठीक है, so many birds, they live, their home is trees. बहुत से बर्ड होते हैं जिनके घर क्या है, ट्रीज हो. ठीक है, सो अर्ली मैन केव्स क्या, गुफाओं में. हाँ, फॉरेस्ट में कहीं गुफाएं ये सब हुआ करती थी. ठीक है, तो उसमें रहते थे वो. क्यों, गुफा में क्या, ऊपर से उनको क्या एक शेल्टर मिल जाता था. ठीक है, जैसे कोई सुरंग है, तो हाँ अर्ली मैन इस तरह की गुफाओं में रहते थे क्योंकि
वो ऊपर से ओपन नहीं होती थी, ठीक है, जैसे हम लोग के घर के ऊपर छत होती है ना, इन द सेम मैनर। सो अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स। ठीक है, हो गया यहां तक। ठीक, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। Men carried the man carried the hunted animals on his dash. So first option is animals, second option is back, and third option is carts. So what is the question, student? Question is that man carried the hunted animals on his back, on his dash. So three options are given: animals, back, and carts. So what is the right answer, student? Right answer is back. Now I explained you why this is a right answer and animal and cart is not a right answer. See, in the very beginning, human beings, the early man, they also move from one, मैंने आपको चैप्टर में बताया ना, in the very beginning early man also move from one place to another place in search of food and shelter. They move from one place to another in search of food and shelter. So student, so at that time they, what they carry their anything which they hunted, कोई एनिमल्स को मार दिया, क्योंकि वो फ्रूट्स भी खाता था, पेड़ों के फल भी खाता था और एनिमल्स को किल करके भी खाता था। तो इफ दे hunt kill any animals, then they carry that animals on their back. Why animal is not a right answer? क्योंकि after some time the human beings, he is also living in the jungle. तो उसे अब क्या है, जब वो भी जंगल में रहेगा तो सारे जंगल में रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो उनसे अवेयर हो गया, उसे ये बात समझ में आ गई कि कौन एनिमल्स जो हैं डेंजरस हैं। डेंजरस मींस एनिमल्स जो कार्निवोरस हैं, दे किल अदर, जैसे वो एनिमल्स को किल करके खाता था ना, तो उसने देखा उसकी तरह भी कुछ लोग हैं, एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स को किल करके खा रहे हैं, मार के खा रहे हैं। तो ये चीज उसने ऑब्जर्व की होगी। और कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जिनको उसने देखा होगा, दे आर ईटिंग ओनली लीव्स ऑफ द प्लांट, ग्रास इन द फील्ड। तो उसने देखा, और उनके जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, उनके जो क्या होते हैं, उनके जो क्लास होते हैं, नाखून पंजे बहुत शार्प होते हैं, एंड देयर टीथ आर वेरी शार्प, क्योंकि उससे वो दूसरे जानवर को किल कर रहे हैं। तो उनके जो क्या होंगे, टीथ होंगे, वो क्या बहुत शार्प और पॉइंटेड होंगे, और उनके जो क्लास होंगे, नाखून पंजे, वो भी बहुत हार्ड होंगे और स्ट्रांग होंगे। ठीक है, तो उसने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ एनिमल ऐसे हैं जो बाकी एनिमल से अलग हैं, और वो क्या खा रहे हैं, सिर्फ प्लांट्स खाते हैं और ग्रास खा रहे हैं। तो ऐसे एनिमल्स को उसको बाद में क्या करना आ गया, टेम करना आ गया। उस ऐसे एनिमल्स को उसने क्या वश में कर लिया, उसको समझ में आ गया कि इनको कैसे अपने कंट्रोल में करना है। तब ना फिर वो एनिमल्स का यूज स्टार्ट किया था, तब उसने एनिमल की यूज स्टार्ट की थी। पहले तो वो पैदल ही चलता था और सामान अपनी बैक पे रखता था। जब एनिमल्स को टेम करना आया तब एनिमल को यूज करने लगा। और कार्ट इज वाई नॉट ए राइट आंसर। वाई? बिकॉज उस समय इन्वेंशन ऑफ द व्हील हुआ ही नहीं था, व्हील का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था। जब व्हील बनी थी तब ना उसने पहली बार कार्ट बनाई थी लकड़ी की। सो दिस इज ऑल्सो नॉट ए राइट आंसर। सो मैन कैरिड द हंटेड एनिमल्स ऑन हिज back in the very beginning. When he killed the animals, then he carried the hunted animal on his back. That is the right answer. Now see the next question.
Third question is man learn to make pots on a dash. First option tailors 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 wheel. Second option cobbler wheel. C potters. Okay, all of you see this question on the board. Man learn to make pots on a pots क्या मिट्टी के बर्तन. ठीक है, जब उसने व्हील का इन्वेंशन कर लिया तो इस व्हील से उसने क्या मिट्टी के बर्तन बनाने भी सीखे, गोल गोल घुमा के व्हील को. इज इट क्लियर? सो फर्स्ट ऑप्शन इज टेलर व्हील. टेलर व्हील इज नॉट ए राइट आंसर बिकॉज हु इज अ टेलर? टेलर इज अ पर्सन हु स्टिचेस द क्लोथ, जो आपके क्लोथ बनाता है. ठीक है बेटा, तो और ये क्या बनाना है? मिट्टी के बर्तन बनाने. किसके बर्तन बनाने? मिट्टी के, क्योंकि पॉट क्या है? मिट्टी का बना होता है. मिट्टी के बर्तन की बात हो रही है. तो टेलर व्हील इज नॉट ए राइट आंसर बिकॉज टेलर स्टिचेस द क्लोथ्स. नाउ कॉबलर व्हील, इट इज आल्सो नॉट ए राइट आंसर बिकॉज ही इज द पर्सन हु स्टिचेस द. ये किस चीज का काम करते हैं? दे ये काम करते हैं जैसे जूते रिपेयर करने, जिसको आप मोची नहीं कहते हो, आपकी चप्पल टूट गई, जूते के शोल खराब हो गए, ये सब तो उनकी रिपेयर काम का जो काम करते हैं उन्हें हम लोग कॉबलर्स बोलते हैं. ठीक है, तो ये भी राइट आंसर नहीं हो सकता. नाउ पॉटर व्हील, यस दिस इज द राइट आंसर बिकॉज अ पर्सन हु मेक्स अ डिफरेंट पॉट्स, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो किस पे होता है? पॉटर व्हील्स. उस व्हील को क्या बोलते हैं बेटा? पॉटर्स व्हील. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. यू कैन नोट डाउन हियर पॉटर पॉटर्स पॉटर्स व्हील is the right answer. Now see, let's start question number B. Question B is a very interesting question. I just tell you. See student, question B is very interesting question because here put this sentence in the correct order. So here no, some sentences are given and you have to arrange the right order for these sentences. If you have a good explanation, अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा बेटा तो आप बिल्कुल इसको सही अरेंज कर लोगे. इसलिए दिस क्वेश्चन पुट these sentences in the correct order. This is a very good question given in your book. Firstly, I write all the points on the board. First point, he tamed animals and learn to ride them. Okay. He cut the first wheel.
he cut the first wheel from a log. Third point is early man noticed a log. Early man noticed a log rolling rolling down a rolling down a slope. Fourth point, he realized he realized what he realized? He realized a round object would he realized a round object would move move faster along the ground. He realized a round object would move faster along the ground. Now, fifth point, early man had to walk from place to place. Now see all of you on the board. See student, these are 5 points given about the early man, and you have to arrange in the right order. Okay, if you are able to arrange this in a right order, it means you are able to understand the whole chapter. सारा चैप्टर आपके समझ में आ गया. ठीक है, अब देखो एक बार इसकी रीडिंग करते हैं, फिर पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेंगे. कि पहले एक बार रीडिंग करो, सुनो, ध्यान से सुनो, फिर जब जो मैंने तुम्हें चैप्टर बताया ना, जब आई एम रीडिंग एंड एक्सप्लेनिंग दिस थिंग, अपने आप चीजें तुम्हारे थिंक करोगे तो ब्रेन में आने लगेंगी कि पहले क्या हुआ था, पहले क्या हुआ था, तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि विच इज द फर्स्ट पॉइंट, विच इज द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड which is the last, that is the fifth point. So firstly I am reading. He tamed animals and learned to ride them. इसका मीनिंग है उसे जानवरों को वश में करने आ गया, और अब वो क्या है, उनको राइड करना आ गया. उनकी बैक पे भी बैठ के वो एक जगह से दूसरे जाने लगा, और जो हैवी लोड था उसको भी उनके बैक पे कैरी करने लगा. ठीक है. सेकंड, ही कट द फर्स्ट व्हील फ्रॉम ए लॉग. उसने पहली व्हील काटी. अब तुम्हें ये बताना सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले क्या हुआ था. एक पॉइंट तो मैंने ये बताया कि ही टेम द एनिमल, उसे जानवरों को वश में करना आ गया. सेकंड है पॉइंट है ही कट द फर्स्ट व्हील फ्रॉम ए लॉग. उसने ट्री के ट्रंक जो था, ठीक है, उसमें पहली व्हील काटी. सेकंड पॉइंट, अर्ली मैन नोटिस ए लॉग रोलिंग डाउन ए स्लोप. उसने नोटिस किया कि एक अर्ली मैन नोटिस ए लॉग रोलिंग डाउन ए स्लोप. स्लोप थी, उसमें
राउंड ऑब्जेक्ट क्या रोल करके आते हैं, उसने ये नोटिस किया कि किसी स्लोप पे से लॉग ऑफ ए वुड जो है वो राउंड राउंड करके आ रहा है। ठीक है, अर्ली मैन नोटिस ए लॉग रोलिंग डाउन ए स्लोप। स्लोप क्या है, ढलान जो होती है। ठीक है, ढलान पे कोई राउंड चीज है तो वो अपने आप बड़ी तेजी से नीचे की ओर आती है ना बेटा। सो इसने ये फोर्थ है, ही रियलाइज्ड ए राउंड ऑब्जेक्ट वुड मूव फास्टर अलोंग द ग्राउंड। उसने ये रियलाइज किया कि जो राउंड शेप के ऑब्जेक्ट होते हैं वो ग्राउंड पे बहुत इजी फास्ट मूव करते हैं, थोड़ा भी पुश करोगे ताकत कर लगाओगे तो वो लगेंगे मूव करने। उसने ये रियलाइज किया। नेक्स्ट है, अर्ली मैन हैड टू वॉक फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अर्ली मैन को प्लेस वन प्लेस से सेकंड प्लेस ऐसे वॉक करना जाना पड़ता था फूड और शेल्टर के लिए। तो दीज आर द 5 पॉइंट्स विच आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड एंड यू हैव टू in these boxes you have to write which is the first point. चलो, विच इज द फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट अकॉर्डिंग टू, अब देखो आप मेरे सामने नहीं हो, नहीं तो अभी मैं आप लोग से एक एक करके पूछता, बिल्कुल मुझे क्लियर हो जाता है कितने बच्चों को समझ में आया, लेकिन अब तो होम से टीचिंग हो रही है। सो इसलिए इसको मच बेटर समझने के लिए हम लोग बुक से चलेंगे। बुक के पहले ही पैराग्राफ में क्या बोला है, 1000 ऑफ ईयर्स अगो। अर्ली मैन की बात कहां से स्टार्ट हुई है, यहां से स्टार्ट हुई है। Thousands of years ago, early man walked from place to place in search of food and shelter. तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, अर्ली मैन हैड टू वॉक फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तभी तो फूड और शेल्टर को सर्च करता था, इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो ये होगा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट के बाद देखो क्या लिखा है आपकी बुक में, व्हेन ही लर्न टू टेम एनिमल्स लाइक वॉक टू प्लेस एंड प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। ये पहला पॉइंट हो गया। दे कैरीड व्हाट दे नीड ऑन देयर ओन बैक, और जो भी हंट करते थे उसको अपनी बैक पे ही लेके आते थे। ठीक है, ये तो हो गया पहला, क्योंकि बैक पे कैरी करने वाला कहीं है नहीं इसमें। ठीक है, एक पॉइंट मिल गया। सबसे पहला पॉइंट ये होगा, अर्ली मैन हैड टू वॉक फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, when he learned to tame animals like horses, donkeys and cow, he started to use them to carry heavy load। अब देखो इससे रिलेटेड कोई पॉइंट है इन पॉइंट्स में, when he learned to tame animal, देखो tame animal वाला ये पॉइंट है, he tamed animals and learned to ride them। so यही आपका सेकंड पॉइंट होगा। सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ, हम लोग बुक से चल रहे हैं क्योंकि तुम मेरे सामने नहीं हो, इसलिए मैं बुक से चल रहा हूं, जो बुक में जैसे जैसे दिया है वैसे ले रहे हैं। सो सबसे पहले वो ही वॉकड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फिर क्या उससे एनिमल टेम करने आ गए, तो ये सेकंड पॉइंट होगा। ही टेम्ड एनिमल्स एंड लर्न टू राइड देम। ठीक है, अब ये वाला हो गया। अब देखो दिया, अर्ली ह्यूमन नोटेड दैट राउंड ऑब्जेक्ट सच एज लॉग्स ऑफ वुड रोल्ड इजिली, दे कुड मूव इवन विद अ स्मॉल पुश। One day tried rolling it along ground, he realized that it was easy to roll round things along the ground। so अब थर्ड पॉइंट होगा, अर्ली मैन, अब उसने क्या किया, अर्ली मैन ने पहले क्या किया, देखो देखो अर्ली मैन नोटेड दैट राउंड ऑब्जेक्ट है सच एज लॉग ऑफ ए वुड रोल्ड इजिली। तो ये क्या किया उसने, व्हाट हैज ही डन, उसने ये नोटिस किया। ठीक है, ये उसे कहां से पता चला, जब उसने किसी, कहां गया ये, अर्ली मैन नोटिस ए लॉग रोलिंग डाउन ए स्लोप। उसने देखा कि कोई स्लोप पे, ढलान पे रोल करते हुए आ रहा है, लॉग ऑफ ए वुड। तो ये आपका क्या पॉइंट होगा बेटा, ये थर्ड पॉइंट होगा। इज इट क्लियर। अब जब उसने रोल करते आते देखा कि स्लोप पे जो राउंड चीज होती है वो अच्छा, वो ग्राउंड पे बहुत, अर्ली मैन नोटिस ए लॉग रोलिंग डाउन ए स्लोप। तो उसने ये नोटिस किया कि एक स्लोप है, ढलान से लॉग, जो लॉग ऑफ वुड आ रही है। तो अब उसको देख के उसने ये रियलाइज किया, पहले उसने देखा, नोटिस किया, देखा, अब उससे क्या रियलाइज हुआ उसके देखने से, he realized a round object would move faster along the ground। आई बात समझ में,
उसे क्या रियलाइज हुआ देखने के बाद? उसे लगा कि ही रियलाइज ए राउंड ऑब्जेक्ट वुड मूव फास्टर अलोंग द ग्राउंड. सो दिस इज योर फोर्थ पॉइंट. अब लास्ट पॉइंट क्या बचा? अब जब उसको पता चल गया था कि राउंड ऑब्जेक्ट मूव फास्टर करते हैं, तो फिर उसने क्या बनाई थी? किस चीज का इन्वेंशन किया था बेटा? व्हील. वेरी गुड. नाउ दिस इज द लास्ट पॉइंट. ही कट द फर्स्ट व्हील फ्रॉम अ log. He cut a first wheel from the log. Thank you, student.